students. How are you all? Hope you will be fine and healthy in this pandemic condition. Today we are going to learn the third chapter from the book Vistar, and the chapter is Journey to the End of the Earth. We are going to start the chapter with the introduction of this continent, Antarctica. Here in this chapter, we all are going to the journey of the continent Antarctica. Here the writer is going to describe her own experience when she has visited this continent. Tishari Doshi, she is the author of this chapter, and here she is going to describe each and everything regarding Antarctica. She starts, early this year, I found myself aboard a Russian research vessel that is steamer, the Academic Shokalsky, that is the name of their vessel, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. कौन सा कॉन्टिनेंट जो सबसे ज्यादा ठंडा है, ड्राई है एंड बहुत विंड जहाँ पे है, एंड दैट इज एंटार्क्टिका. माय जर्नी बिगेन 13.09 degrees north of the equator in Madras. So her journey starts from the Madras, and 13.09 degree, that is the place or the north of the equator where Madras is situated. So in the beginning only she is going to give us the glimpses, because this chapter is full of geographical, biological, scientific, each and everything is included when she is going to describe Antarctica. Even the history of the humankind, human race is also discussed over here, and so in the beginning only means she is going to give us the glimpses कि वो कितनी accurate है. And involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. So वो मद्रास से वो लोग पहुंचे एंटार्क्टिका. तब तक उन लोगों ने क्रॉस किया था 9 टाइम जोन्स. यू नो व्हाट इज टाइम जोन? ईच कंट्री और द ईच कॉन्टिनेंट इज हैविंग देयर ओन टाइम जोन. सो डिफरेंट 9 टाइम जोन्स उनको पास करने पड़े. 6 चेक पॉइंट्स. ऑल यू नो चेक पॉइंट्स आफ्टर PUBG, बट नाउ इट्स अ सैड न्यूज और अ गुड न्यूज दैट PUBG इज बैड, but 6 checkpoints. You know the better meaning of checkpoints. 3 bodies of water, water bodies, oceans, and at least as many ecospheres. Ecospheres, that is natural condition, forests, mountain ranges, and even the cities where living and non-living are combined together. That is called ecospheres. So different kinds of water bodies, time zones she has to pass. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. वो एंटार्क्टिका पहुंची तब तक उनने 100 hours की जर्नी की थी, and which includes journey through car, through aeroplane and through the ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. वो वहाँ पहुंची, उसने एक रिलीफ की, राहत की सांस ली when she has just saw that very very big white landscape, expansive, चारों तरफ फैला हुआ व्हाइट लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप दैट इज नजारा जो हमें दिखाई देता है. इट वॉज टोटली व्हाइट बिकॉज इट इज कवर्ड विथ स्नो.
an uninterrupted blue horizon. Horizon is a place, an imaginary place where the sky and earth is going to meet. That point is called horizon. तो वो कहीं मैंने इतने ब्यूटीफुल सीनरी देखी, वो मेरे लिए एक रिलीफ थी, followed up with an immediate and profound wonder. लेकिन वो जो रिलीफ थी वो इमीडिएट किसमें चेंज हो गई? वंडर में, वेरी डीप वंडर. वो एक आश्चर्य में परिवर्तित हो गई. एंड वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन. और वंडर क्या थी? एकदम तीव्र थी. इट वॉज इमेंस वंडर एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन. आइसोलेशन, यू नो व्हाट इज आइसोलेशन इन द डेज ऑफ कोरोना? अकेले रहना. तो ये कॉन्टिनेंट भी कैसा है? बिल्कुल अकेला है. वहाँ उसके आसपास कुछ भी नहीं है. तो ये कहते हैं उसके आइसोलेशन को देख के भी मैं थोड़ी वंडर हो गई. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम when India and Antarctica were part of the same landmass. लेकिन वो ज्यादा हैरान तो इस सोच से हुई कि ये पूरा बर्फ से भरा है और हमने मीन्स यही खोज की है कि करोड़ों साल पहले इंडिया और एंटार्क्टिका जुड़े हुए थे. एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो सोच के ही वो बहुत हैरान हो गई. When she visited and she saw the planet or the continent. Now she is going to describe the history. यहाँ उसने ये तो बताया कि मैं बहुत आश्चर्य हो चकित हो गई जब मैंने ये सोचा कि ये दोनों लैंड साथ में कैसे हो सकती है. और अभी वो हमें हिस्ट्री की डिटेल्स दे रही है और समझा रही है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट कैसे साथ में थे, एशिया एंड एंटार्क्टिका. 650 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब मोर देन 65 करोड़ ईयर्स, अ जायंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट. तब क्या एग्जिस्ट करता था? सुपर कॉन्टिनेंट, इसने नाम दिया है. वो सारे कॉन्टिनेंट इसमें से ही अलग हुए. पहले सारा जो था वो एक ही था और साइंटिस्टों ने उसको नाम दिया है वो लैंड को गोंडवाना. गोंडवाना था वो एक बहुत ही बड़ा मीन्स लैंड का हिस्सा था जो सारे कॉन्टिनेंट वहां जुड़े हुए थे. सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका. जो अभी एंटार्क्टिका है उसके आसपास में सारे अलग अलग मीन्स बहुत बड़ा जो एरिया था जिसके सेंटर में आज का एंटार्क्टिका था. लेकिन अब क्या हुआ है, वो सारे एरिया जो थे वो वहां से अलग हो गए हैं. थिंग्स वर काइंड डिफरेंट देन. ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. ये जब गोंडवाना था तब तो ह्यूमन बींग्स अर्थ पे आए भी नहीं थे. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. लेकिन ऐसा नहीं था कि तब वहाँ पे जीवन नहीं था. बहुत सारे एनिमल्स एंड ग्रीनरीज तो थी लेकिन वो आज से डिफरेंट टाइप की थी. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड. लेकिन 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना क्या हुआ? टूटा, अलग हुआ. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे. और वो वही टाइम था जब डायनासोर्स शायद नष्ट हो रहे थे और अलग अलग मैमल्स अर्थ पे उत्पन्न हो रहे थे. एंड एज वी नो, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ मैमल्स. So the mammals were emerging and dinosaurs were wiped out. The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know today. और ये जो landmass था गोंडवाना, वो forced to separate. We don't know exactly कि वो कौन से force रहे होंगे जिससे अलग अलग पार्ट बनते गए गोंडवाना के
और आज जो दुनिया हमारे सामने खड़ी है, जो मॉडर्न ग्लोब है, वो इमर्ज हुआ। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और एंटार्क्टिका को विजिट करना मतलब वो हिस्ट्री को याद करना। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग। और ये स्टडी के 2 मायने हैं। 2 चीजें हमें ग्रास्प करनी है, समझनी है एंटार्क्टिका की विजिट करके। एक पहली चीज, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए थे। अब हमको पता चला कि हमारा जो सुपर मॉम जो है ना, कि जहाँ से हम पैदा हुए, या जो पहली जमीन जो थी वो थी गोंडवाना, दैट इज एंटार्क्टिका के कहीं आसपास में। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में हीडिंग कर रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स इन प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। Or here we have to understand the Cordilleran faults. What is that Cordilleran fault? That is nothing but mountain ranges. So different kind of mountain ranges it's also exist there that we have to study. We have to study the Precambrian. Precambrian is the era where the human beings just started arriving. हम हमारे बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, दैट इज प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड। प्री कैम्ब्रियन एरा के ग्रेनाइट्स वहां से हमको मिलते हैं, ओजोन एंड कार्बन, और वहां का ओजोन लेयर एंड कार्बन लेयर। दोज ऑल थिंग्स, थ्रू ऑल दीज थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम कैसे पैदा हुए, और हमारा अस्तित्व यहाँ कैसे उभरा, ये सारी चीज हम कहाँ से जान सकते हैं, फ्रॉम द विजिट टू एंटार्क्टिका। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। और जब हम ये सोचते हैं कि बिफोर 100 ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो ये सारी चीजें हुई, एक गोंडवाना बहुत बड़ा जो हिस्सा था, वहां से सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए, तो ये सारी जो प्रक्रिया हुई वो hundreds of million years it took place. But all these things we are going to think that is mind boggling. Mind boggling मतलब हम बोलते हैं ना कि ये सोच के तो मेरा मगज है वो बिल्कुल खाली हो गया या फट गया, तो मगज फट जाना। तो ऐसी चीज है कि हम अभी भी जब हम पढ़ते हैं तो भी पहले तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि कभी इंडिया विच इज फुल ऑफ हीट, आज वो हम इतनी गर्मी महसूस कर रहे हैं, वो कभी एंटार्क्टिका का एक हिस्सा रहा होगा। दिस इमेजिनेशन इज ऑल्सो माइंड बॉगलिंग, दो इट इज द ट्रूथ। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. वो पहले क्या था कि गोंडवाना से 2 अलग टुकड़े हुए थे, एक बना था एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद क्या हुआ, वहां से एक टुकड़ा अलग पड़ा, शायद वो इंडिया के नाम से जाना गया, और वो एशिया, दोनों इतना मिल गए कि दोनों के जो बीच वाला भाग था वो हिमालयन रेंज बन के उभर के सामने आया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और धीरे धीरे साउथ अमेरिका भी वहां से अलग पड़ा और वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ खिसकता गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम्पोलर करंट, और एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पैसेज बन गया जिसका नाम है ड्रेक पैसेज। और वहाँ क्या होता है कि बहुत फोर्स से पानी बहता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन वहाँ मिलते हैं, तो ये उसके बहुत कोल्ड करंट पैदा हुए एंड कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड। और वो कोल्ड करंट की वजह से एंटार्क्टिका कैसा बन गया, फ्रीजिड,
डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। वो वहां से हिल भी नहीं सका, वहीं पर फ्रीज हो गया, जम गया और डिसोलेट, सबसे अलग हो गया एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। वी नो एट द बॉटम, एट द southern end of this earth. For a sun-warming South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. वो कहती है एक मेरे जैसी लड़की जो बिल्कुल सन वाले प्रदेश में रहती है, सन वर्शिपिंग प्रदेश में रहती है, जहाँ हमेशा सूर्य की ऊर्जा मिलती है, इस जगह पे वो रह रही है जहाँ 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड एंड इट इज अ चिलिंग एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। वो सिर्फ उसकी सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, विच इज नॉट इफेक्टिंग ओनली इट्स ब्लड सर्कुलेशन और इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन, बट ऑल्सो फॉर अ इमेजिनेशन। उसका माइंड भी है, वो जैसे यहाँ जम गया था, जैसे उसका मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेटरी इफेक्ट हुए थे, वैसे ही इफेक्ट शायद उसके माइंड के ऊपर भी हुई थी। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। और वो कहती है कि यहाँ पे चलना, रुकना, टहलना कैसा लगता था, जस्ट लाइक अ पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल जो टेनिस का बॉल होता है ना, उसे हम पिंग पोंग बॉल बोलते हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल एकदम प्लेन वाइट होता है और उसके टॉप या बॉटम या ऐसी कोई हम उसको उसमें निश्चित नहीं कर सकते, और बिल्कुल प्लेन सतह उसकी रहती है। तो ऐसा ही जैसे उसको लग रहा था वाइट बर्फ से ढंका हुआ एंटार्क्टिका, एंड डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। और यहाँ ह्यूमन बीइंग होने के कोई भी मार्किंग नहीं थी, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स और बिल्डिंग्स, कुछ भी वहाँ नहीं थे। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। वो कहती है कि जब हम एंटार्क्टिका पे हैं तो व्हाट इज टाइम, हमको पता है ना कि अब सुबह हुई, अब दोपहर का टाइम है, अब रात होने वाली है, तो ऐसा कोई टाइम सेंस यहाँ नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज वी ऑल नो कि बिकॉज ऑफ द अर्थ पोजिशन, जो हमारे पोल रीजियंस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने मीन्स उसको कंटिन्यूअसली सन की लाइट मिलती है। मतलब क्या आप समझ लो, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो वो कहती है यहाँ तो कोई हमें टाइम का भी कोई सेंस नहीं था, पर्सपेक्टिव अलग अलग कोई मार्किंग भी नहीं है कि गांधीधाम यहाँ से कंप्लीट हुआ और अंजार स्टार्ट हुआ, ऐसी कोई सीमाएं भी नहीं थी। तो वहाँ पे मीन्स आज के वर्ल्ड का कोई भी पर्सपेक्टिव नजर नहीं आ रहा था। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty। मतलब माइक्रोस्कोपिक एकदम नजदीक का भी देखे या एकदम दूर का देखे, बहुत दूर को देखे, तो भी हमको एक ही चीज नजर आती है, एंड दैट इज आइस। मिड्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स इज बिगेस्ट कंट्रीज। और दूसरी क्या चीज उनको दिखाई देती है, दैट इज ब्लू वेल्स। ब्लू वेल, वी कैन से द बिगेस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, दैट दे आर विजिबल, एंड द अनदर थिंग इज आइसबर्ग। और कितने बड़े बड़े आइसबर्ग, इज बिगेस्ट कंट्रीज, बर्फ के पहाड़ कंट्रीज के जितने। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। Days go on and on and on in serial 24-hour austral summer light. They were there for 2 weeks। और वो कहती है कि ये 2 weeks में एक के बाद एक दिन जाने लगे। Days go on and on and on, and what they experienced all the 24 hours, the austral summer light। Austral summer light, austral, that means the word
विच इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में समर कैसी होती है? एकदम हल्की होती है, वहाँ कभी ज्यादा हीट नहीं होती। तो अभी ये जो दिन वाले टाइम में ये गए थे, जो 6 महीना वहाँ उजाला होता है, तो वहाँ कैसी हीट थी? एकदम हल्की हीट थी। दैट इज ऑस्ट्रल समर लाइट। एंड अभी क्वेश्चन साइलेंस, और साइलेंस कैसा था? नीरव, जिसको हम बोलते हैं नीरव शांति। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच और काल्विंग आइस शीट। कभी ओकेजनल एवालेंच होती थी। एवालेंच होना मतलब पहाड़ से बर्फ का गिरना। अगर ऊपर से बर्फ गिरता था या तो कोई आइस शीट है वो मेल्ट होती थी, काल्विंग होती थी, तभी थोड़ी आवाज सुनाई देती थी। एंड इट कॉन्सेंट्रेट्स द प्लेस, और सब हम कॉन्सेंट्रेट वहाँ कर सकते थे। एंड उससे वो प्लेस की जैसे महत्ता भी बढ़ जाती थी, क्योंकि एकदम शांति में बस यही आवाज उसकी आती रहती थी। इट्स एन इमर्शन that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. और यही वो प्लेस है जहां आप अपने आप को अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से जोड़ सकते हो। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रेग्नोसिस इजंट गुड। लेकिन वो कहती है कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये जो प्रोग्नोसिस है, मतलब फ्यूचर की फोरकास्ट है, यहाँ आने के बाद अगर हम कुछ हमारे फ्यूचर के बारे में, ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर के बारे में सोचे तो वो इतना सुखद नहीं है। नाउ व्हाई ही सेज कि यहाँ ये जो एटमॉस्फेयर है या जो उन लोगों ने महसूस किया वो हमारे लिए क्यों सुखद नहीं है। नाउ शी इज गोइंग टू डिस्क्राइब अंडर द टाइटल ह्यूमन इम्पैक्ट। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. हमको पता है कि ये जियोलॉजिकल क्लॉक में तो ये 65 करोड़ ईयर्स का जो हिसाब लगा रहे हैं, उसमें मानव जाति की उत्पत्ति तो कितने सालों में हुई? लास्ट 12,000। तो ये तो जस्ट लाइक अ सेकंड। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम we have managed to create quite a ruckus, eaching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. वो कहते हैं इतने ही टाइम में हमने तो पूरी नेचर की जो बोल रहे वाट लगा दी है, नेचर को बहुत ही हार्म किया है। और we have created these cities and mega cities, और जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटिंग विथ अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्स। और उसकी मेन वजह वो मानती है दैट इज अवर इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल रिसोर्स है वो तो लिमिटेड ही है, तो उसको पाने के लिए हम दूसरी स्पेसीज को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स, उसकी वजह से क्या हुआ है कि वर्ल्ड की चारों ओर, अर्थ की चारों ओर हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बना दिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो स्लोली बट श्योरली, दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और ये हम भी महसूस कर रहे हैं ना। इस बार तो बारिश कितनी अच्छी हुई, कच्छ में 200% बारिश हुई, मोर देन 200%। फिर भी हम सेम हीट या गर्मी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे बारिश हुई ही ना हो। तो ये क्यों हो रहा है?
only because of the global temperature is going to increase. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट आज के समय का क्या है? क्लाइमेट चेंज. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या उसकी जो वेस्ट साइड अभी पिघलनी थोड़ी शुरू हुई है, क्या वो एंटायरली एंटार्क्टिका की वेस्ट साइड पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? और इसकी वजह से जो ओशन का सी लेवल है वो कुछ डिसरप्ट होगा, उसके ऊपर उसकी कोई असर होगी. Will it be the end of the world as we know it? क्या वो वर्ल्ड का एंड कर देगा? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. और ये सारी बातों में जो मेन रोल है वो किसका है? एंटार्क्टिका का. स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका. Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. और स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सबसे पहली बात कि वहाँ कभी ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हुआ, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल प्योर है. एंड द अनदर विच इज मोर इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, उसके अंदर उसके आइस कोर में, कोर दैट इज बहुत जमीन के अंदर का पार्ट, 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. पिछले 500,000 years, पिछले 5 लाख सालों का जो हिस्ट्री है, हमारे जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो उसकी आइस कोर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है. If we want to study and examine the Earth's past, मीन्स पास्ट टाइम में, आज से 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले या 1 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ कैसी थी, तो हमें वहाँ से ही पता चलेगा. प्रेजेंट का तो पता चलता ही है, और वहाँ जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे हम फ्यूचर का भी अनुमान लगा सकते हैं. सो शी इज सेइंग दैट फॉर द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, Antarctica is the place to go. Antarctica is the place where you can get the information of Earth's past, present and future. Now she is saying what students are doing there. In the beginning of the chapter only she told that she is the part of one Russian research group. So she says, student on ice, the program I was working with the Sokeski, जो उनके वेसल का, उसकी बोट का नाम था, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. This is the most important thing कि रिसर्चर ने उसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया था फॉर द स्टडी ऑफ द एंटार्क्टिका और द अर्थ क्रस्ट, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू मेक, टू फोस्टर माने नई बनाना, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट. क्योंकि उसको समझ में आए कि हमारी प्लेनेट, हमारी अर्थ पहले कैसी थी, नेचर में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो ये सारी चीजें हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब हमारी यंगर जनरेशन या हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये सारी चीजें पता हो. इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ. 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है. कौन सा प्रोग्राम? स्टूडेंट ऑन आइस, जैसे उनको नाम दिया गया है. Now headed by
कैनेडियन जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन ये प्रोग्राम चला रहे हैं जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच। पहले मीन्स उसने अब ये इन लोगों को नहीं ले जाते हैं, वो उससे बिल्कुल उब गए हैं सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि उनको पास पैसे है तो शायद वो थोड़ा एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वहां से कोई यूजफुल स्टडी उसको मिलती नहीं है। क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। थोड़े क्यूरियोसिटी सीकर्स होते हैं जो उनको थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा उसके ऊपर स्टडी कर सकते नहीं है। बट विद द स्टूडेंट्स ऑन आइस he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. बट वो मानते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स यंग जनरेशन को इसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर ओनली द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। दे आर able to take some life-changing decisions and they are able to learn, to absorb मतलब जो उन्होंने सीखा है उसको अपने आप में उतारना and most importantly उसके अनुसार act करना। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. So, what she is saying that it is easy to imagine all the things and talk all these things regarding the ice caps melting, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर विजिट द प्लेस तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही है। व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, और जहाँ जाके आप ये महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो कैसे पिघल रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, एंड आइस शेल्स उसके ऊपर के जो आइस है वो गिर रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, द वर्ड कोलैप्सिंग। यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, और वहां जाके ही आप रियलाइज कर सकते हो कि ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला के जो ग्लोबल वार्मिंग की हमें बात कर रहे हैं वो कोई इमेजिनरी नहीं है, इट इज रियल। जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं, मतलब जहाँ नेचर बिल्कुल छेड़छाड़ जिसके साथ नहीं हुई थी, बिल्कुल प्योर कंडीशन में था, वो नेचर भी आज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की असर में आ गया है। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। मतलब ये बिल्कुल इंटरप्टेड है, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह की नेचुरल कंडीशन, या तो डेजर्ट है, लैंडस्केप है, फॉरेस्ट है, ओशन है, ऐसी कोई वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो चेंज है वो छोटा सा चेंज भी अगर एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी असर बहुत बड़ी होती है। हम जैसे बोलते हैं ना, जिसने कभी कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया हो, शायद यहाँ रशिया से कोई आदमी आए और आप उसको डेजर्ट में रखो तो उसके क्या हालत होगी उसकी, वो उसकी परेशानी बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा हीट का एक्सपीरियंस किया है तो हम लोग अगर डेजर्ट में जाएंगे, माने हमारी जो परिस्थिति है जो चेंज होगी तो हमको इतनी असर नहीं होगी।
तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने कभी वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा भी असर ऐसा आता है एनवायरनमेंट में तो वहाँ असर जो है उसकी बहुत बड़ी होती है। स्मॉल एक्शन क्रिएट्स बिग रिएक्शंस। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. That is phytoplankton, एक प्लांट है, ग्रास है जो वहाँ देखने को मिलती है। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wonders and most important of process called photosynthesis। और ये भी वहाँ पे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की वन सेल्ड प्लांट है, वो भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। Scientists warn that a further depletion on the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। ये जो ग्रास है साइकोप्लैंक्टन जो वहाँ पे पाया जाता है, अगर ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये उसके ऊपर भी असर करेगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। क्योंकि अगर ये ग्रास नहीं होगी जो वहाँ के सी में होती है, अगर उसका ग्रोथ अटक जाएगा तो उसकी असर नेचुरली कहाँ पे पड़ेगी? ऑन मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। मतलब उनकी जो पूरी जो साइकिल है, इको साइकिल है, वो चेन है, वो टूट जाएगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल कार्बन साइकिल। इन द parable of the cytoplankton, there is a great metaphor for existence। वहाँ पे जो existence है उसमें बहुत बड़ा change आने वाला है। Because of this, we can say the photosynthesis process is going to interrupt it। Now, she is going to describe the another experience, that is walk on the ocean। ओशन के ऊपर चलना बहुत मीन्स हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, ओशन के ऊपर चलना। ज्यादा से ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं? ओशन में जाके अपना पैर रोना या तो हाफ बॉडी तक जाना, और ज्यादा से ज्यादा जिसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है वो वहाँ स्विमिंग करते हैं। बट वॉकिंग ऑन द ओशन, यस, शी इज हैविंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ वॉक on the ocean। My Antarctic experience was full of such epiphanies। बहुत अलग अलग उसको एक्सपीरियंस हुए। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degree south। वो हमें बहुत डिटेल, माइन्यूट डिटेल देती है कि कहाँ उसको ये एक्सपीरियंस हुआ। The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tentpole Island। दो आइलैंड के बीच में से उनका जहाज निकल रहा था, which is a thick white water was there, which was preventing us from going any further। लेकिन जो वाटर का फ्लो इतना थिक था कि वो उसको प्रिवेंट कर रहा था, उनकी शिप आगे नहीं जा रही थी। The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean। कैप्टन ने तो बोला था, जहाज के कैप्टन ने, कि हम पीछे चले जाए, नॉर्थ की साइड चले जाए, लेकिन उनके जो हेड थे उन्होंने उसको क्या किया? नो, यू कैन क्लाइंब, दिस इज द आइसबर्ग, और वो आइसबर्ग के ऊपर आप चढ़ सकते हो। सो देयर वी वर, ऑल 52 ऑफ अस। कितने रिसर्चर्स थे वहाँ? 52। kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। पहले भी हमने ये लेसन में देखा था
कि कोई आइसबर्ग कितने बड़े होते हैं, कंट्रीज के जितने। तो वो आइसबर्ग के ऊपर उनका वॉक का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत था। Underneath our feet was a meter thick ice pack. उनके पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस का वो जो पैक था, तो वो उस आइस के ऊपर चल रहे थे। मतलब आइस सी के ऊपर कितना थिक जमा हुआ था, 1 मीटर। So it was a very nice experience, and under beneath that 180 meters of living breathing salt water, और उसके अंदर 180 मीटर तक तो वाटर था। मतलब उनकी डेप्थ कितनी थी। In the periphery, crevasse seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. जैसे हमारे स्ट्रे डॉग्स बनियान ट्री के नीचे कैसे आराम से बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे भी सील्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मरीन एनिमल, वो भी वहाँ पे आराम से उनको आइसबर्ग के ऊपर बैठी हुई दिखाई दी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे यहाँ जो एनिमल्स है वो हमारी नेचर, जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। वहाँ के जो मैमल्स है, जो सी एनिमल्स है, दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक दैट। अगेन सी हैज टू क्रॉस, क्योंकि अभी एंटार्क्टिका से उसको मद्रास भी तो आना है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. ये ब्यूटी ऑफ बैलेंस है। हमारे प्लेनेट पे कई सारी ब्यूटीज है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है, और वो सारे में कुछ ना कुछ अंदाज जो है वो उनका अलग ही है। They are having their own, we can say, beauty. How would it be if Antarctica were to become the one place that it once used to be? Means पहले तो वो warm place ही था, क्योंकि हमको पता है कि जब डायनासोर्स थे वो गोंडवाना लैंड थी जो एक ही हिस्सा था, तब तो अर्थ के जो वार्म थी वो बहुत ज्यादा थी, और एंटार्क्टिका तो पीछे धीरे धीरे फ्रीज होता गया बिकॉज ऑफ द करंट ऑफ दैट कोल्ड वाटर। तो अगर वो पहले जैसा गर्म हो जाए तो विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मेमोथ्स एंड वुली राइनोस? हु इज टू से? क्या हम पहले जैसे डायनासोर्स वाले एज में चले जाएंगे या वो एज वापस आ जाएगा? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन उसको एक आशा है, एक होप है, जो मीन्स यंगस्टर्स के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर, जिन्होंने इनको ये विजिट किया है, वो अभी ऐसा शायद नहीं होने देंगे। जो हीट या जो वार्मथ आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको वो ज्यादा खराब नहीं होने देंगे, और वर्ल्ड की पोजीशन है वो खराब नहीं होगी। शी इज हैविंग दैट होप। All I can say is that a lot can happen in a million years. माने मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन उनका जो डिफरेंस की शुरुआत होती है वो एक एक दिन से होती है। मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हाँ ठीक है ना, लाखों साल में ऐसा हुआ, अगले लाखों साल में कैसा होगा, लेकिन लाखों साल की शुरुआत तो एक दिन से ही होती है। अगर एक दिन खराब गया, दूसरा दिन खराब गया, मतलब वो जो खराबी वाले दिन या अच्छाई वाले दिन, वो तो एक एक दिन से ही हिसाब होगा, तभी जाके मिलियंस ऑफ इयर्स में ये चेंज आएगा। सो वट एवर चेंज इज गोइंग टू कम, बट द डिफरेंस a day also makes that difference. So none of the day we can say that it is unimportant. Each and every day
our environment, to preserve our environment is important, as she wants to say. And with that, she is going to end this chapter. Now, in the second video, which I am going to send you by evening, we are going to discuss the question answers. Okay, thank you. Goodbye.